कौन बनेगा करोड़पति में द फर्स्ट करोड़पति is broke right now. How does one build a very strong foundation in their money journey? बट जो आपके सेविंग अकाउंट में जा रहा है it is not giving you any money. आपका पैसा erode हो रहा है वहाँ पे. How was your relationship with money while growing up? Income minus spending is equal to investment. Up to 1,50,000 under Section 80C. Stock market in the long run will always give you good returns. 15 years के बाद 1 करोड़ का वैल्यू 50 लाख हो गया होगा. तो अगर आप 60 साल के हो गए तो फिर आप क्या करोगे? ये जो 15,000 पर मंथ का कॉन्सेप्ट है ये उनके लिए जो 1 लाख कमा रहे हैं. What amount do you think is that will make me wealthy? Someone who has $200 billion is saying money can't buy happiness. Thank you so much, Shrishti, for agreeing to do this. Pleasure is all mine. Welcome on the Make Sense podcast. Today we are gonna indulge in this very important topic of money, which generally people are either misguided or they don't understand or they don't have the right source to learn from. Thankfully, we have you today. I hope this makes sense to a lot of you guys. Yeah, everyone loves it, but I don't know, secretly they hate it also. Really? Yeah, like they love money, But they hate to understand how the money works. Yeah. The I mindset agree. is that कि ठीक है ज़्यादा पैसा is बुरा or the evil people only earn money or the people who are making more money in this world like currently जैसे Elon Musk है या LVMH के जो founder हैं. So people tend to think that these guys are evil. They're doing something. Yeah, or you end up thinking money will not make you happy. Yeah. And that is said by most of the people who are Rich. rich. Yeah. So for poor, this makes sense, but rich people are getting richer by just saying this that money doesn't make sense. Yeah. But, Someone who has $200 billion is saying money can't buy happiness. Yes. And Yeah. he's sitting in a probably gold bathtub and saying that. So you know that it's always better when you're in with money Yeah. crying. Crying in a and- Ferrari. Yes. Great. Okay. So, first of all, let's go with so what's your, for the audience, what's your background? As in, how was your, how was this money thing or finance thing in your life? So, just a little Okay. bit about that. So I have been saving since I was in school. Oh, wow. Then I completed my chartered accountancy as a course, and I got more in-depth insights into what money is all about, what finance is all about. SFM was my favorite subject. I scored about a 65 in it. SFM is what? Sorry. Strategic Financial Management. That's wow. a subject in CA. Okay. I scored 65 and then CA 60 के ऊपर मिला मतलब you are God. Oh. So that was the only subject. Actually, I scored an exemption which was above 60. And I thought, okay, it makes sense क्योंकि मेरा relationship with money, I have cried for money. I have been very, very happy about receiving money. So it made sense that, ठीक है, let's make a career in finance. And also because I see finance domain being dominated by males. Yeah. I want to do something which is different, something which is very rebellious. Being the youngest kid at my place, I am the one, spoiled one, doing all the things that nobody does. So, मैंने सोचा ठीक है, let's get into finance. I gave an interview at ICICI Bank, didn't make sense to me. Then I got into investment banking. I gave an interview there. And that is where my journey into finance started. It was a domain of real estate plus finance, a very niche domain where you won't see a lot of people working. तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया इसमें. I have worked for about 5 years into finance, into real estate investment banking. I have worked in L&T finance. And my whole journey has been all about finance. You can figure it by now. Of course. And last year मैंने full time content creation शुरू किया. And it has been a great journey because now not just me but a lot of people are taking advantages of things that I know because of my journey into finance. Yeah, of course. So yeah, that's my journey. If Great. So basically this is for the audience that you're learning from a very legit source, so nothing to worry about. Great. Okay. So Shrishti, what I want to now, like, to set the context for the whole podcast, let's go back few years down the line to understand how was your relationship with money while growing up. Like, how was money around you? How was money inside your mind? And all of that to understand that, okay, how did you progress in this journey? So my dad was the first generation to come to Mumbai. We did Okay. not have a lot of money. That makes sense because first generation coming here, surviving in Mumbai in a situation which is very, very competitive. It we are 3 siblings and we would share a lot of things, like from a bread slice to pizza, everything was shared between 3 siblings. So you can say I've come from a very, very humble background.
But having said that, now we have our own flat in Mumbai, we have our own car. Like that would, one person would consist of that as something as settled Yeah. in Mumbai, right? Of course. So that has been the entire journey, like coming from a very humble background to having your own home in Mumbai. That's a whole 360-degree Yeah, transformation. transformation, you can Hmm, say. hmm. So I have learned a lot because of this transformation, because there has been times when I had just like 300 or 400 rupees in my wallet, but I got caught because of going in a first class Okay. compartment in train, Hmm. and that 400 rupees also was taken away, and I was crying all the way back to my college that I don't have money, how do I go back home? So I had to borrow from a friend. So all these small things, situations have taught me a lot about money, about savings. And now today, I won't say I'm a miser, but I do save a lot. Like 70% of my income is saved and invested, because I have seen that situation, and I have seen that it makes sense when you have a lot of money in your wallet or in your bank account lying just there. Yeah, it gives you a good feeling. It gives you a good feeling, irrespective if you are splurging also. I do splurge a lot. Yeah. I do things which make sense to me. I travel a lot. But then I always have this cushion in my mind that ठीक है, पैसे हैं मेरे पास, I can Yeah. afford it. Yeah, So it gives you a sense of peace. definitely. I sleep well at night. Yeah, that's what money is for, right? Yes. So a lot of people are going to relate to this because बहुत सारे लोग की कंडीशन अभी वैसी है जैसे आप बता रहे थे कि पहले जो है, एंड द ब्यूटी ऑफ पर्सनल फाइनेंस इज व्हाट आई थिंक इज कि अगर आप उसको समझ गए तो योर सिचुएशन कैन चेंज इन 5 to 6 years रफली. बिकॉज मेरे साथ भी सिमिलर कुछ ऐसा हुआ है. लाइक earlier I used to have a grudge with money because I haven't seen money while growing up, and I used to think ki, why are these people rich, why are we not rich, right? And we used to think कि हाँ कुछ तो गलती कर रहे होंगे तभी इनके पास पैसा है, हम लोग अच्छे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है बट हम लोग अच्छे हैं. Yeah, so we used to think like that, right? Yeah. And उस वजह से क्या है कि आपका वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं होता ना पैसे के रिलेटेड. एंड आई थिंक हमें सिखाते भी नहीं है. Yeah. सेविंग्स एक आप सिचुएशन से सीख रहे हो, बट हमारे करिकुलम में कभी पढ़ाया नहीं गया कि सेव नहीं, करना नहीं, चाहिए. yeah. Which I think which now is changing in India. I see my nephew learning about finance, which I was so happy about. But हमें कभी नहीं पढ़ाया गया. तो More हमने जो भी importantly, देखा yeah. है वो सीखा है. Yeah, It and is more as- importantly घर पे भी कोई बात नहीं करता ना इस बारे में. मतलब हमारे टाइम पे पहले नहीं Yeah. करते थे. Nobody used to talk about कि अच्छा, they used to talk about कि ठीक है यहाँ से इतना पैसा बचा लेते हैं, ये रहने देते हैं, like extra expense रहने देते हैं, but they never used to talk about कि how to manage it, कि अगर पैसा आ भी गया आपके पास तो basically I've also seen that, and with personal, like understanding personal finance, things changed for me within 4-5 years, right? So that's why I wanted to get this to the audience कि you can do it, you just need to do it the right way. Yes, Right? definitely. Great. Okay, so addressing, एक तो हमने जैसे अभी बात करी कि ये जो इशू है पैसे वाला, so have you also seen similar कि पैसों के बारे में बात नहीं करनी या फिर मनी इविल, ये वाली चीज हैव यू सीन? पैसों के बारे में डायरेक्टली स्पेशली फीमेल्स को नहीं बताते हैं घर पे. जो मेल्स अर्न करते हैं उनके बैंक में क्या हो रहा है, लॉट ऑफ विमेन डोंट नो, दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस. या तो मैं तो सबसे छोटी थी, मुझे बस ये पता चल रहा था कि ठीक है मुझे ये इस साल पिकनिक नहीं जाना बिकॉज वी डोंट हैव सो मच मनी राइट नाउ. तो मैं पिकनिक नहीं जाती थी. अ लॉट ऑफ माई कॉलीग्स बोल रही हूँ, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट इवन आफ्टर बीइंग अ रैंकर इन माई स्कूल. मैं ऐसे घर पे रहती थी एंड आई वुड क्राई द एंटायर डे दैट दे आर एंजॉयिंग, आई एम नॉट, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव मनी. तो आई ऑलवेज न्यू द कॉन्सेप्ट दैट मनी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विच यू अदरवाइज वुडंट हैव. राइट. तो ये मैंने ग्रो होते होते देखा था, बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे जितना भी रिक्शे का पैसा मुझे मम्मी 30 रुपीज़ दी, उस टाइम पे आई थिंक 19 रुपीज़ का मीटर होता था मुंबई में, तो वो 10 रुपये मेरे लिए सेविंग्स होते थे. आई वुड सेव इट. वो सेव करते करते एक साल में मेरे पास आराम से 2-3 हज़ार रुपये बच जाते थे, एंड दैट वुड बी माई सेविंग्स Of course. इन टू माई वॉलेट. उस टाइम में मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, बट इट मेड सेंस बिकॉज सेविंग्स मैंने बहुत पहले से सीख लिया था. राइट राइट राइट. And even now, if I'm saving 70% of my income, it's because of those learnings. Yeah. What do you think about saving mindset versus the investment mindset? मतलब जो आपकी सेविंग है वो तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट है,
बट जो लोगों की सेविंग्स होती हैं लाइक मेरे को तो व्हाट आई फील इज दैट सेविंग अकाउंट वर्ड ही फ्लॉड है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बंद हो जाना चाहिए बिकॉज सेविंग अकाउंट में कभी किसी की सेविंग हुई नहीं है टेक्निकली आज तक. हाँ देखो, सेविंग वर्सेस सेविंग अकाउंट आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स. Yeah. जरूरी नहीं है जो मैं सेव कर रही हूँ वो मैं सेविंग अकाउंट में डाल रही हूँ. Yeah. बट जो आपके सेविंग अकाउंट में जा रहा है, इट इज नॉट गिविंग यू एनी मनी. Yeah. आपका पैसा इरोड हो रहा है वहाँ पे बिकॉज इन्फ्लेशन इज जस्ट ईटिंग अप ऑन योर मनी. Yeah. आपका 5,000 आज है, कल को भी वो 5,100 हो जाएगा. बट इन्फ्लेशन उस टाइम तक 6,000 तक पहुंच जाएगी. तो Right. यू हैव नॉट अर्नड इट, यू हैव एक्चुअली लॉस्ट योर मनी. Yeah. So definitely when I say I'm saving a lot, it doesn't mean मैं वो saving account में डाल रही हूँ. Maybe I'm investing it into a better investment like mutual funds or stocks. And this is why it is different, like saving account and savings. Yeah, because a lot of people, I have seen a lot of people who haven't seen money, but then even now when they have money, they tend to save it like they will not spend on some things. Like for example, they're not spending on protein powder, which is important, right? Because it's a 8,000 rupees thing. They won't spend on a nice, maybe a nice experience or maybe a nice vacation. Yeah. But they think that saving that money is actually See, being a saver is very different from being a kanjoos. You can't be a kanjoos just Right. because you have not seen a lot of money growing up. Yeah. आप कंजूस मत बनो because then you will just keep saving every penny. yeah. But you will not experience most of the things in life क्योंकि आपको पैसे नहीं निकालने हैं और आपको जहाँ भी मौका मिला आप पैसे बचा रहे हो. So then your thought process becomes like that. आपके आजू बाजू लोगों का भी thought process उस तरीके से हो जाता है. आपके बच्चे भी वही सीखते हैं. Right. And they stop contributing and you know friends contributing but they will not contribute. मुझे पैसे बचाने हैं. तो मैंने ऐसे काफी फ्रेंड्स देखे हैं जो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते थे Right. बचपन में. बट आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने अपने माँ बाप से या उनके फैमिली से सीखा है ये. तो Right. कंजूस माइंडसेट इज अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. इट इज नॉट अबाउट सेविंग एट ऑल. Right. Okay, then what is this when we hear a lot of rich people say कि जैसे उस बंदे का बहुत पैसा होगा, ठीक है, 500-600 करोड़ की होल्डिंग्स होंगी इक्विटी में और सब कुछ होगा, बट देन दैट गाय इज सेइंग कि लिव फ्रूगली. एंड उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग फ्रूगल का मतलब आप समझाओ कि व्हाट डज दिस मीन. सो सी, लिविंग फ्रूगली डजंट मीन दैट आप रोड पे रहने लगो या मैंशन में रहने लगो. मतलब लोग है ना काफी एक्सट्रीम मीनिंग्स निकाल लेते हैं. जैसे अगर मैं बोलूंगी ओके एफडी इज गुड फॉर मी तो लोग सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे एफडी में. बट बाय दैट आई डोंट मीन दैट पूरा पैसा एफडी में डालो. उतना पैसा एफडी में डालो जो आपको नियर फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा. Right. सो एफडी इज लाइक अ लिक्विड फंड फॉर मी जहाँ पे मैं अगर मुझे एक साल में कहीं यूज करना है पैसा तो आई विल पुट इट इन एफडी. डजंट मीन दैट एफडी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. So I think it is the perception of people that needs to change when they hear something from somebody. Yeah. And eventually put your own mind to investing money. Right. Yeah. Great. Okay. So now let's come to the very important like the base foundation. कि ठीक है, now people know कि invest करना है, save करना है, and they are eagerly waiting to hear it. So let's start with foundation. कि how does one build a very strong foundation in their money journey? Let's say they're starting their personal finance journey now. How does one person build a strong foundation? Okay. So यहाँ पे I think one perception first needs to change. Okay, let me ask you, what are the 3 pillars that you see when it is about money? Like savings, spendings, and investment. These are Yeah. the 3 pillars of money, right? Yeah. How do you formulate it? Like income minus spending is equal to investment. That is the Right. general formula. Right. That is what needs to change. That needs to change because your income minus investment should be your spendings. So Okay, that changes a lot of concept. For just for the context, अगर मैं पहले ही invest कर दे रही हूँ तो जितना बचा मैं उतना spend करूंगी. That changes a lot for me because otherwise मैं खर्च पहले कर दूंगी, पैसे बचे तो मैं invest करूंगी. Right. That changes the entire perception for me. So just day before yesterday I was talking to a friend. He was like, you know what, मैंने automated SIP बंद कर दिया है. Okay. ऑटोमेटेड SIPs आपके बैंक अकाउंट से पैसे अपने आप कट कर इन्वेस्ट हो जाते हैं. मैंने बोला क्यों? उसने बोला मेरा काफ़ी खर्चा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड बिल्स बहुत हाई आते हैं कभी कभी, तो मैं जब मन चाहे तभी इन्वेस्ट करता हूँ. मैंने बोला दिस इज वाई एग्जैक्टली ऑटोमेटेड SIP इज दैट पहले आपके बैंक से पैसे कटे, इन्वेस्ट हो, उसके बाद आप जो बचा है वो स्पेंड करो. सो देन ही वाज लाइक या मेक सेंस. सो आई वाज लाइक या दैट इज व्हाई इट इज देयर, यू नो, इट इज ऑटोमेटेड बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग. Right. तो मेरे हिसाब से द फंडामेंटल रिमेन्स दैट पहले आप इन्वेस्ट करो, आपकी सैलरी जैसे क्रेडिट होती है, उसके बाद आप
spend karo money. This remains the fundamental for money overall. Right. एंड देन कम्स, अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो, बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हो, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे आपकी जर्नी इनटू फाइनेंस. Yeah. तो अगर इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर, डोंट इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ. स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स. दीज आर द फंड्स विच आर वेरी पैसिव. मतलब आपको उसको ट्रैक करने की रोज रोज जरूरत नहीं पड़ती. आप इन्वेस्ट कर दो, 3 साल बाद भी देखोगे तो आपका कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन हो गया होगा. म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स आर सच दैट एप्रिसिएशन हो ही जाता है. Even if like you have not researched a lot, but definitely that's not the advice that don't research. Yeah. You have to research. But these are for the beginners. You can start with these funds. They will give you 15 to 20% returns. Not very bad, not very great also like in stock market. But meanwhile आप सीखते रहोगे stock market के बारे में, क्योंकि mutual funds eventually invest तो stocks में ही करते हैं. Yeah. Yeah. So Okay. that's the idea. So ये तो मतलब ये तो हो गया कि ठीक है ऊपर से कि you do this and then you invest in mutual funds. Now for them to understand about कि हाँ मतलब उनको proper like they, let's say for example a person who is earning 25,000 or 50,000, 1 lakh का जो ये range होता है general जो है, he or she wants to reach a goal of let's say 1 CR, 2 CR, 5 CR depending on मतलब जो भी उनके goals हैं. तो उसमें exactly like step by step, like first step क्या होना चाहिए. जैसे for example कुछ लोग बोलते हैं कि first step should be first you insure everything. First you do insurance and then you move on to doing next step, things. yeah. So like that, like step by step. So suppose if I start earning from today, मैंने आज से जॉब स्टार्ट किया है, Yeah. आई डेफिनेटली अग्री टू द पॉइंट कि सबसे पहले आपको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए. Right. Why? Because your premiums are very very low when you are young. Right. As soon as you are 30, you are 40, your premiums start increasing to a great extent. और तभी आप 20 25 हजार भर रहे होगे वर्सेस आज 3-4 हजार भरना पड़ता है एवरी ईयर. एंड इट डजंट अप्रिशिएट वेरी क्विकली. लाइक अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो. Right. सो इंश्योरेंस डेफिनेटली वन, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी. इन फैक्ट उससे क्या होता है कि इवन इफ व्हेन यू आर यंग you might meet with an accident, you might, there are unfortunate events happening which are not under our control. So उससे आप प्रोटेक्टेड रहते हो और आपका पैसा जो इतना सेविंग्स है वो उसमें फालतू का नहीं जाएगा just because you met with an accident. But ये इसमें भी फिर types होंगे ना. Yes, so there are term insurances which is essentially for people who want to secure their loved ones. Suppose I am 50 and I meet with an accident and I'm no more. तो मेरी फैमिली को एक सर्टेन कॉर्पस मिलेगा. सपोज मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस किया है तो 1 करोड़ मेरी फैमिली को मिलेगा. इट एंश्योर्स दैट माई फैमिली गोज ऑन इवन विदाउट मी फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू. एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो होता है आपके मेडिकल बिल. सपोज आपको कभी एडमिट करना पड़ा इमरजेंसी में, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका कोई इलनेस हो गया आपको, तो दैट इज कवर्ड बाय मेडिकल इंश्योरेंस. So these are the two types majorly broadly that you can get. मेरे पास दोनों हैं. I also have a family floater plan. Even your family can be covered in it. So मेरे पास 3 इंश्योरेंस है because I'm very big on insurances. I feel, in fact मैंने यूज भी किया है in my lifetime. People might think कि यंग है तो यूज नहीं होता, मरने के बाद ही यूज होता है. It's not so. इंश्योरेंस यूज होता है. मैंने इस साल भी यूज किया. I think last year भी मैंने यूज किया था. Because you don't know, life is very uncertain, right? So yeah, get insurance. Then you can start with mutual fund SIPs. Now, how do you find out about which mutual fund is good? उसके लिए first you need to check कि आपका risk appetite कितना है. तो आपका risk appetite, for example, what's your age right now? 28. 28. So you are in a very risk-free zone because your parents might also be earning right now, or you might have no partner right now, no kids right now. You're not married probably. So इस time पे risk काफी कम होता है. आप खुद के लिए जी रहे हो. You have nothing to lose. Yeah. So you can take a lot of risk. You can invest in equity. But at the same time, if you are somebody who's like 40, have 2 kids, have a family to look after, at that time you cannot take a lot of risk. तो आप safer investment में करोगे जैसे mutual funds, index funds, which are a lot more safer than stocks. So that's how you define your risk appetite. उसके बाद you need to check whether how much you can invest. Right. तो how much you can invest will depend upon, again, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप डिफाइन कर लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फिर आप खर्च करो. बट अगर आप
बिलीव करते हो कि नहीं पहले मैं खर्च करूंगा, तो डिफाइन अ बजट फॉर द खर्चा. राइट. बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से हो कि नहीं मैं पहले खर्च करूंगा और फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जो बचा हुआ है, तो खर्चा को बजट कर दो. सपोज मैं 50,000 कमाती हूँ, तो 10,000 मैं खर्च करने वाली हूँ एवरी मंथ ऑन फूड, शॉपिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा. तो 10,000 खर्च होंगे, बाकी का आपका 40,000 है. तो 40,000 में से यू माइट वांट टू आल्सो कीप समथिंग इन योर बैंक अकाउंट. तो 10,000 सपोज बैंक में रख दिया, बाकी बचे 30,000 यू इन्वेस्ट. राइट. So that is how you can define your investment amount. And yeah, that's how you can start with Okay. the whole investment journey. ग्रेट. बट इसमें फिर कंफ्यूजन आ जाता है. म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड्स भी इतने सारे हैं, राइट? तो उनका एक बार लाइक what like types of How mutual do you funds are there define and how where do to you invest? how do you Okay. decide that? वो भी एक बार. Like if I ask you if you want to invest into a mutual fund, what would you say? What is your goal behind investing? Returns. Yours is high returns, High suppose. returns, yeah. For me, it might be अगर मैं salary कमा रही हूँ, for me it might be saving taxes. Your goal will define which mutual fund you need to invest in. So suppose मुझे taxes बचाने हैं तो मैं ELSS में invest करूंगी, which is a tax saver fund. Okay. When you are saying you want high returns, then you will directly want to invest more into equity. तो mutual funds में direct equity mutual funds होते हैं जो directly stocks में invest करते हैं, जिनका expense ratio काफी कम होता है. Now what is expense ratio? Is just to give you in a layman term, it is a fee paid to your fund manager. Right. वो जितना हाई होगा आपके रिटर्न्स उतने कम हो जाएंगे. सो फॉर यू गेटिंग इनटू अ डायरेक्ट equity mutual fund will give you high returns. For me it might be ELSS. Both are correct in each other's place, but people just say कि नहीं, don't invest in ELSS, it will not give you great returns. But my objective might be very different. Right. So yeah, that is how you define कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपके गोल पे डिपेंड करेगा. हाई रिटर्न्स चाहिए तो डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करो. ऑब्वियसली इट इज रिस्की. अगर टैक्स बचाने हैं ELSS में करो, बिकॉज नो अदर म्यूचुअल फंड हेल्प यू इन सेविंग टैक्सेस. तो बेसिकली सेविंग टैक्सेस मतलब अगर आप ELSS भरते हो तो आप अपने टैक्स में बता सकते हो कि मैंने ELSS दिया है, तो उतने पे आपको अप टू 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शंस मिलते हैं टैक्सेस में, तो आपका उतना टैक्सेस बच जाता है. इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट अबाउट जैसे म्यूचुअल फंड में भी जब आप कोई ऐप खोलते हो तो उसमें आता है ना कि फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड. सो ये क्या है? सो ये अगर आप सपोज रिटर्न्स और रिस्क को बैलेंस रखना चाहते हो, यू डोंट वांट टू बी वेरी वेरी रिस्की, यू डोंट वांट टू हैव अ वेरी वेरी लो रिटर्न, तब आप जाओगे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप. ये सारे जो है वो सेफर इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज उनके इन्वेस्टमेंट जो है बहुत डाइवर्सिफाइड है इनटू वेरियस कैप्स. नाउ कैप्स से मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये 3 डिफरेंट कैप्स होते हैं. स्मॉल कैप्स आर यूजुअली रिस्कियर, लार्ज कैप्स आर यूजुअली लेस रिस्कियर. तो जब मैं एक हाइब्रिड फंड या मैं फ्लेक्सी कैप बोल रही हूँ तो ये तीनों में इन्वेस्ट करेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो गया, बिकॉज आपका तीनों कैप्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से रिस्क भी कम है और रिटर्न्स भी मैनेजेबल है. इट्स नॉट वेरी लो, इट्स नॉट वेरी हाई. सो दैट इज हाउ यू डिसाइड विच फंड यू नीड टू इन्वेस्ट इन. ओके. फॉर लेमैन, कैप मतलब बेसिकली वो जो म्यूचुअल फंड है वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है. करेक्ट. दैट इज अ कंपनी. सो लार्ज कैप इज company that is very very established. They have huge market capitalization. Small cap has lower market capitalization. They might be new companies who have just started into manufacturing units, or but they are still established. क्योंकि सब कुछ सेबी रेगुलेटेड होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टार्टअप को उन्होंने म्यूचुअल फंड बेचने दे दिया. राइट. दे आर स्टिल एस्टैब्लिश्ड बट रिस्क इज हायर. Large cap might be your Reliance. Large cap might be your Tata. ITC. Correct. So those are all large cap. That is how you define. Okay. But ये होती सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और सेबी रेगुलेटेड होती हैं ऐसे. म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में सेबी इतना घुसा पड़ा है कि दे कैन नॉट एस्केप इट. मतलब अभी तो इट्स वेरी रेगुलेटेड. पहले की बात अलग थी, लाइक हर्षद मेहता के टाइम का लोग अभी भी एनालॉजी देते हैं, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल बिकॉज सेबी इज ऑलवेज ऑन देयर टोज एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ नाउ सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग. ग्रेट. ओके. सो ये हो गया म्यूचुअल फंड्स का सारा. देन लेट्स कम टू स्टॉक्स. इसमें जितना जो स्टॉक्स के पीछे जो इतना मारामारी है कि इतना पैसा डालेंगे इतना रिटर्न मिल जाएगा, इतना पैसा डालेंगे इतना रिटर्न मिल जाएगा. सो आई नीड यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि रियलिटी क्या है उसकी.
सी ऑनेस्टली बोलूँ तो स्टॉक मार्केट इन द लॉन्ग रन विल ऑलवेज गिव यू गुड रिटर्न्स, या क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी मैंने जस्ट देखा 2-3 दिन पहले 74,000 पे था सेंसेक्स, अभी Yeah. 78,000 पे है. हम्म दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्शन. या बट इवेंचुअली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो 10-20 साल के लिए, स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू राइज. देयर इज नो सेइंग नो टू दैट. लेकिन अब कौन सा स्टॉक्स चूज करें, तो आप कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज कर लो जिसका काफी ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका है ऑलरेडी, जिसका काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है. जस्ट एक सर्विस नहीं है, काफी ज्यादा सर्विसेज देते हैं. जैसे रिलायंस माइट बी इनटू कंज्यूमर प्रोडक्ट बट दे आर ऑल्सो इनटू टेक्नोलॉजी. सो डाइवर्सिफिकेशन है उनका. एक कुछ नीचे गया तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा कंपनी नीचे चला जाएगा. सो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स चूज करो जो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. लेकिन सपोज यू आर अ स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर जो एक दिन में खरीद के बेचना है, तो मैं यूजुअली ये नहीं करती हूँ. आई ट्राइड डूइंग इट ड्यूरिंग इलेक्शंस, बट मुझे लगता है ये एक सट्टेबाजी हो गई है एक तरीके का, वेर यू जस्ट गो विद द इंट्यूशन कि हाँ कल को बढ़ने वाला है और कल को क्रैश हो गया वो एक्चुअली, बिकॉज इट्स जस्ट अ गट फीलिंग दैट यू आर गोइंग ऑन विद. फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू गुड प्रॉफिट्स. सो अबाउट स्टॉक्स व्हाट आई फील इज जो कुछ तो एक तो सेगमेंट वो होगा जो जिनके पास पैसा है लगाने के लिए, ठीक है, दे विल बी लाइक कि हाँ ठीक है इक्विटी पे लगा देते हैं और इतना पैसा इतने साल में इतना रिटर्न मिल जाएगा. जो बेसिक नॉलेज है कि हाँ ठीक है, क्योंकि जो भी पैसा स्टॉक्स में लगा रहा है वो ये सोच के तो नहीं लगाता कि ये डूबेगा. डूबता है वो सोचना अलग चाहिए बात है. डूबता है वो अलग बात है, पर सोचता नहीं है ना कोई भी कि हाँ यार मैं लगा रहा हूँ. उसका तो पहला इंस्टिंक्ट होता है कि ये पैसा लगाए, ये मतलब पैसा बना के देगा मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स मूवीज हैं और मतलब पॉजिटिविटी तो होती है इतनी लगाते टाइम. पर एक बार जब डूबता है फिर वो थोड़ा और डाउनफॉल में जाता है. व्हाट शुड पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग, जैसे लेट्स से 23, 24 years old, क्योंकि मैंने ये बहुत जगह देखा है कि बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी काम, मतलब इन्होंने काम करना शुरू किया है और शुरू करते ही उनको सीधा इक्विटी में जाना है. सो व्हाट डू यू थिंक? इट इज नॉट बैड आइडिया. मैंने भी ऐसी शुरुआत की. मैंने 500 के थोड़े स्टॉक्स, एक स्टॉक खरीद लिए. टाटा के खरीद लिए, आई थिंक ONGC का खरीदा. जो मेरे लिस्ट में ऊपर आ रहे थे मैंने खरीद लिए बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई. लेकिन इसमें एक था कि मैंने काफी ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया था. मैंने 1 लाख रुपए नहीं डाले थे, ऑनेस्टली उस टाइम थे भी नहीं. तो मैंने 500 से शुरुआत की और फिर मैं ट्रैक करती थी कि क्या हो रहा है स्टॉक में और क्यों हो रहा है. राइट. तो मैंने ऐसे रियल पैसा डाल के ट्राई किया, बट ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं जो आप डमी स्टॉक्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो. आई डोंट रिकलेक्ट द नेम बट आई टेल, जिसमें आप एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट है वो रेप्लिकेट कर रहा है वो, बट आपके पैसे असली में नहीं जा रहे. तो यू कैन ट्राई ऑन दैट ऐप इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग. बट अगर आपको 500 से शुरुआत करनी है एक स्टॉक में, मैक्सिमम यू लूज इज 500, जो कभी होता नहीं है. 0 पे कभी आपका वैल्यू जाएगा नहीं स्टॉक मार्केट में, unless it's a penny stock. But penny stock is a stock which is below 10 rupees. So you can start like that. 23, 24, it doesn't matter. आप virtual से start करो या फिर आप ऐसे भी start कर सकते हो. At least you'll learn. You'll learn. Learning is the key in stock market. कि कोई crash क्यों हो रहा है stock या फिर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है. तो usually कुछ announcement होती है कि expand हो रहा है कोई company, because of that the prices rise. कभी क्रैश हो रहा है तो इज बिकॉज समबडी रिजाइन फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम अ की मैनेजरियल पोजीशन. कोई CEO ने बोला कि अब मैं नहीं काम करने वाला हूँ. राइट. तो ये सारी रीजंस होती है क्रैश होने की. और भी फंडामेंटली आपको बैलेंस शीट और वो सब चेक करना, तो आप आगे कर सकते हो. बट यूजुअली अगर आपको बस स्टार्ट करना है तो एक प्रॉफिट देख लिया करो वो कंपनी में लास्ट क्वार्टर में या फिर लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट्स हुआ था. इट्स वेरी इजी अवेलेबल. आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, P&L बैलेंस शीट सब कुछ. तो बस प्रॉफिट देख लो कि नेगेटिव में है पॉजिटिव में, एटलीस्ट दैट विल इंडिकेट इट्स अ ग्रोइंग कंपनी और नॉट. ग्रेट. बिकॉज बहुत सारे लोग इस इंटेंशन से करते हैं कि हाँ ठीक है जल्दी पैसा बनेगा, बट जल्दी पैसा एज सच कुछ होता नहीं है इसमें. ये आई थिंक लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में आज डाला तो कल 21 दिन में पैसे डबल वाला सीन है उनका. आई थिंक वो लोगों ने देखा है किसी का होते हुए, इसलिए वो स्टार्ट कर देते हैं. बट उनको ये नहीं पता है कि जिसके 21 दिन में पैसे डबल हो रहा है उसके 40 डे में 0 भी हो रहा है. तो आगे का जर्नी भी जानो ना कि क्या हुआ. बिकॉज न्यूज आती है ना, वो ऊपर आती है कि
इस पे इतना पैसा लगाया होता 10 हाँ। साल पहले तो अभी आपके पास 10 करोड़ रुपए होते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक वो सब देख के लोग सट्टेबाजी जैसा इस पे गैम्बलिंग समझ के डालने लगते हैं, बट स्टॉक मार्केट एक्चुअली बहुत प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं बैक एंड पे। तो आपके पास उतना नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीज़ें चेक करो कि हिस्टोरिकल डेटा, यानी आपका पहले का डेटा क्या बता रहा था, प्राइजेस राइज हो रही थी, फॉल हो रही थी, ट्रेंड क्या है मार्केट में, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उतना बेसिक चीज़ें भी चेक करोगे ना, तो आई थिंक देयर इज अ वेरी ह्यूज चांस दैट विल मेक प्रॉफिट्स, नॉट इन 21 days बट मे बी इन अ ईयर और 2. Slow basically. Slow earnings, yes. So isn't there any instrument which makes you fast money? A lot of cryptocurrency people will come into this conversation कि yes we are the ones, हाँ. but ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है कुछ मेरे हिसाब से जिस पे आप बेट कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में आप एक कंपनी को देखकर बेट कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में आप क्या देख के बोल रहे हो कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एलॉन मस्क के ट्वीट। So if it is going to be so volatile just based on one person's tweet, or price is rising or falling, it is not making sense to me as a financial person. लेकिन फिर भी मैंने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी में। सबने किया है वो ट्राई करने के लिए। देखो फोमो सबको हो रहा था उस टाइम पे। डेफिनेटली मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, बट आई हैव मेड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दिस बिटकॉइन हार्विंग पीरियड जो अभी हुआ था, और मैंने कुछ 40-50% प्रॉफिट बनाया उस पे। लेकिन डजंट मीन दैट यू शुड गो एंड ट्राई। या ऑफ कोर्स मैंने कुछ 10,000 डाला था, दैट्स इट। आई वांटेड टू जस्ट फील कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी। फोमो से बच गए ना। फोमो से बच गए, राइट। इंटरेस्टिंग। ओके, बट फिर मतलब बेसिकली वही हो गया ना कि अगर आपको जल्दी पैसा दे रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो मतलब कुछ तो रिस्क है। हाँ, आपको पता करना चाहिए क्यों इतना जल्दी दे रहा है, रादर देन जस्ट बीइंग हैप्पी कि चलो मुझे इतने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो भी देखो, क्योंकि कभी भी जा भी सकते हैं। राइट। या इंटरेस्टिंग। बट फिर अच्छा, ये एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि म्यूचुअल फंड्स में जो कंपनीज म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं, जो फंड्स होते हैं, वो भी तो स्टॉक्स में डाल रहे हैं ना। तो डायरेक्ट इक्विटी और उसमें बस डिफरेंस क्या हुआ फिर? आप डायरेक्ट जब भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद रहे हो, तो आप एक स्टॉक खरीद रहे हो एक टाइम पे। जैसे मैंने टाटा पावर खरीदा, तो मैं बस टाटा पावर में 1 लाख रुपए डाल रही हूँ। वही जब मैं एक म्यूचुअल फंड खरीद रही हूँ, तो एक म्यूचुअल फंड मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। आई एम नॉट गोइंग टू पर्टिकुलरली इन्वेस्ट इन जस्ट वन स्टॉक। अभी सपोज मैंने कोई म्यूचुअल फंड लिया एबीसी, वो एबीसी माइट बी इन्वेस्टिंग 20% in Tata Power, 20% in Reliance Industries, 20% in ONGC। तो वो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि आपके कोई एक स्टॉक के गिरने से आपका म्यूचुअल फंड नहीं गिरेगा। इट इज़ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड एंड वेरी वेल प्लान्ड बाय द फंड मैनेजर्स जो बैक एंड पे ये सब मैनेज करते हैं। वो प्रोफेशनली एक्सपर्ट होते हैं। उनकी सैलरी भी, आई रिमेंबर रीडिंग एन आर्टिकल, जो हाईएस्ट सैलरी है इट इज़ अबाउट 8 crore ऑफ वन एनुअली। जो फंड मैनेजर उसकी सैलरी 8 crore है, एंड ही हैज अ ईसॉप ऑफ 47 crore। ईसॉप अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको 47 crore उस दिन मिल जाएगा। राइट। तो अगर वो इतनी सैलरी कमा रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी उसमें। वो प्रोफेशनली मैनेज कर रहा है सब कुछ। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप भले इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका फंड एक एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है। स्टॉक्स में आप डायरेक्टली आप ही मैनेज कर रहे हो। आप एक्सपर्ट हो नहीं हो डजंट मैटर, आपको ही देखना है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। That is the thing with stock market. Interesting. So basically, कोई भी अगर इसको अप्रोच करना चाहता है, तो they have to figure it out कि हाँ उनका गोल क्या है, and then they divide their money. Yes, गोल क्या है, रिस्क कितना ले सकते हो, रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट करना है। आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा, अंतरात्मा को पूछो कितना रिटर्न्स चाहिए। Right. So I think it starts with your own understanding your own self, like any other journey, and उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल जर्नी है वो बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक पॉइंट के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, तो आप वो इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद योर ओन सेल्फ फर्स्ट, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट जल्दी पैसा तो नहीं बनेगा। देखो 1-2 बार मिल भी गया ना, तो वो आदत नहीं बननी चाहिए कि मुझे हर बार जल्दी पैसा मिलेगा जस्ट बिकॉज मुझे 1-2 बार मिल गया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्टॉक मार्केट। बहुत लोगों को जस्ट एंटर करते हैं, 2 दिन में प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस इन्वेस्ट करते हैं, वापस प्रॉफिट हुआ, तो थर्ड टाइम भी उनको लगता है प्रॉफिट होगा, अभी हो गया लॉस। दैट इज बिकॉज it's a habit that you are cultivating कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए। This habit is not very sustainable in the long run. It's not. Interesting. Yes. And what about gold? Because gold हमारी जनरेशन और हमसे पहले की जनरेशन समझती थी। आगे वाली जनरेशन को बहुत ट्रेडिशनल मेथड लगता है।
So हाँ, गोल्ड ट्रेडिशनल मेथड है डेफिनेटली, but लेकिन what is the उसमें ऐसा क्या है गोल्ड में? गोल्ड अप्रिशिएट होता ही है. इट Okay. इज नॉट डेप्रिशिएटिंग एसेट बट एन अप्रिशिएटिंग एसेट, जो Hmm. विद टाइम बढ़ेगा ही. अब Okay. कितना बढ़ेगा वो हमें नहीं पता. लास्ट 10 years में ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुका है. Hmm. बट डज इट मीन नेक्स्ट 10 years में भी 100% बढ़ेगा? वी डोंट नो फॉर श्योर, बट इट विल हैपन. मोस्टली इट विल हैपन. लेकिन गोल्ड में क्या होता है, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसमें आप मेकिंग चार्जेस 12 to 15% लूज कर देते हो. Right. मेकिंग चार्जेस क्या है? जो आपका गोल्ड ज्वेलरी है उसको इंट्रिकेटली बनाने में जो भी खर्च होता है वो एक वर्कर को जाता है, तो वो Right. मेकिंग चार्जेस बोलते हैं उसे. Right. जो 12 to 15% होता है जो आप लूज करते हो एक्स्ट्रा बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. तो अभी जो जेन जी का कॉन्सेप्ट है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. तो ये सब क्या है? इट्स नॉट अ फिजिकल गोल्ड, इट्स अ गोल्ड विच इज लाइंग इन योर वॉलेट, लाइक इन योर बैंक अकाउंट. तो I personally invest in SGBs, which is a sovereign gold bond. There are two reasons for it: no making charges, and it also gives you 2.5% annual interest semi-annually. Okay. उसका मतलब है कि 2.5% इंटरेस्ट मुझे 2 बार मिलेगा साल में, लेकिन सेमी एनुअली. पूरे साल का इंटरेस्ट 2.5% हाँ. रहेगा. लेकिन मेरा गोल्ड में जितना भी अप्रिसिएशन हुआ उससे तो ज्यादा ही मिल रहा है मुझे यहाँ पे, भले बस 2.5% है. अगर ऐसे देखे तो इट्स ओनली 2.5%. राइट. बट इट इज स्टिल मोर देन व्हाट आई कुड हैव अर्न्ड इन फिजिकल गोल्ड. एंड अप्रिसिएशन सेम होगा जितना गोल्ड में होता है उतना SGBs में भी होगा. डेफिनेटली लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का, उसके पहले आप इसे बेच नहीं सकते हो. लेकिन 5 साल बाद विद सर्टेन कंडीशंस आप उसे सेल कर सकते हो, बट 5 साल के पहले आप नहीं कर सकते सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सेल. आई इन्वेस्ट इन दिस क्योंकि मुझे पता है मुझे 8 साल तक उस पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको पैसे लगने वाले हैं अगले 1-2 साल में, तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करो क्योंकि आपके पैसे अटक जाएंगे. राइट. सो आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड कि मुझे कितना पैसा लगेगा अगले 2-3 साल में. क्या मैं लॉक इन पीरियड के पहले अगर जरूरत पड़ा तो मैं कहाँ से मैनेज करूंगी? ये सब चीजें आपको खुद के लिए देखनी पड़ेगी. राइट. कि हाउ विल यू मैनेज इट. इंटरेस्टिंग. तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये फायदा है कि बेसिकली भले ही रिटर्न नहीं मिल रहे म्यूचुअल फंड जितने, पर पैसा घुसेगा नहीं, आपका पैसा सेफ रहेगा. यस, डेफिनेटली. अगर हमारे पेरेंट्स गोल्ड खरीदते थे तो इट actually appreciated with time. Yeah. And sometimes your parents are right, so listen to them. हर चीज में वो गलत नहीं होते हैं. Right. And with gold specially, मैं खुद बिल्कुल against थी for physical gold, but मैंने भी देखा है कि I still have physical gold and I am happy that I have it today. पहले मुझे लगता था ये गोल्ड मैं पहनती भी नहीं हूँ मम्मी, आई लाइक आर्टिफिशियल मोर, बट इट मेक सेंस कि हाँ, वो लोग बोलते थे बुरे समय में काम आएगा. फॉर मी इट इज नॉट दैट कॉन्सेप्ट, बट मुझे पता है कि हाँ डेफिनेटली विद टाइम इट विल अप्रिशिएट. वो तो उनके पुराने टाइम का बुरा समय वाज डिफरेंट. तो उस टाइम पे गोल्ड बेच के ही वो लोग ने बच्चों को पढ़ाया है ना. लाइक एक स्टोरी कॉमन रहती है कि मैं स्कूल इतने दूर गांव में जाता था, चलकर जाता था. So it's the same kind of story कि गोल्ड बुरे समय में काम आता है, and it is somewhat true. Okay. And what are your views on FD? Like people hate it, people love it. A lot of people love it, but most of them hate it now because of the social media. So I have seen both kind of reels where an influencer is saying FDs are bad for you, and I've also seen FDs you should love it. मतलब ऐसे दोनों school of thoughts है. Honestly, I have myself invested in FD because मुझे सर्टेन पैसा लिक्विड फंड में चाहिए होता है ना. लिक्विड फंड क्या होता है? जब मुझे 1-2 साल में कुछ पैसे जरूरत पड़ने वाली है, मुझे पता है कि मुझे 2 साल में एक ट्रिप पे जाना है, राइट, और मुझे ये पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं अटका सकती जो 5 साल तक मुझे रिटर्न्स देगा. जैसे म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 5 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए. राइट. FD में ऐसा नहीं है. FD में आप आपका टेन्योर चूज कर सकते हो कि कितने मंथ्स का आपको FD बनाना है. तो सपोज 24 मंथ्स का बना लिया, तो मैंने वो किया, और मैंने एक सर्टेन अमाउंट जो मुझे मिलता है एज कंटेंट क्रिएटर ब्रांड कोलैबोरेशन से, मुझे पैसे जो लमसम आते हैं मैं वो FD में कभी कभी डाल देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये मुझे जरूरत पड़ने वाली है इन द नियर फ्यूचर. राइट. एंड इट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट टिल द टाइम योर दैट्स फाइन, इट्स ओके. सो FD इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट अगर आपको 8% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आजकल मिल रहा है. काफी सारे FDs दे रहे हैं, स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 8 to 8.5% भी दे रहे हैं. फॉर सीनियर सिटीजन इट्स इवन हायर, 9% तक भी मिलता है FD रिटर्न. लेकिन अगर इट इज 6.5-6%, आई वुड से डोंट इन्वेस्ट इन FD. रादर कीप इट इन अ डेट म्यूचुअल फंड
जो अगेन एक लिक्विड फंड है. लिक्विड फंड मतलब आप उसको कभी भी निकाल Yeah. सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, नो लॉक इन पीरियड. Hmm. तो अगर आपका एफडी इंटरेस्ट 7 to 8% है या 8.5 है तो आप एफडी में डालो. एंड अगर इट्स लोअर देन 7%, कीप इट इन अ डेट म्यूचुअल फंड. ओके. Yeah. जो एफडी का परसेंटेज कैलकुलेशन होता है कि इतने पे इतना, फिर नेक्स्ट ईयर फिर, तो वो म्यूचुअल फंड से डिफरेंट होता है या सेम होता है? मतलब जैसे म्यूचुअल इट इज फंड ऑल में ऑन कंपाउंडिंग. आपका इंटरेस्ट इन ऐड होता है और कंपाउंड होता है. एफडी में भी सेम है, या Same. फिर एफडी में ऐसा है कि Yes. 1 लाख की करी 7%, 7,000, अब नेक्स्ट टाइम फिर से 1 लाख पे होगा या 1 लाख 7 पे होगा? अनलेस यू आर विड्रॉइंग और ब्रेकिंग द एफडी. अच्छा, सपोज okay. आपने वो 7,000 निकाल लिया पैसे, हम्म. तो आपका 1 लाख पे वो कंपाउंड होने वाला है. ओके, या इंटरेस्टिंग. कमिंग टू इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें से ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुझे किसी को भी मंथली पैसा दे सकते हैं? एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया कि हाँ ठीक है मंथली पैसा तो दे रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है और कितना दे रहे हैं? तो ऐसे 2 इंस्ट्रूमेंट्स है. एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो मंथली नहीं देंगे बट आपको 6 मंथ्स में एक बार देंगे. 2.5% हाफ होकर मिलेगा आपको. सेकंड, विच इज अ वेरी अंडररेटेड इंस्ट्रूमेंट, इट इज बॉन्ड्स. ओके. तो बॉन्ड्स आर बोथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दोनों होते हैं. माई 20% ऑफ द पोर्टफोलियो इज एक्चुअली इनटू बॉन्ड्स बिकॉज मुझे रेगुलर रिटर्न्स बहुत ज्यादा पसंद है. इट इज Okay. लाइक अ पॉकेट मनी फॉर मी जो मुझे मिल रहा है, Hmm. विच आई नेवर गॉट एज अ किड. सो आई लव इट ऑल द मोर. हाँ. तो बॉन्ड्स में क्या होता है, काफी सारे बॉन्ड्स होते हैं. आप चूज कर सकते हो कि आपको मंथली रिटर्न्स वाला बॉन्ड चाहिए, क्वार्टरली रिटर्न्स वाला चाहिए, या सेमी एनुअली. एनुअली वाले भी होते हैं. राइट. तो आई हैव वन बॉन्ड विच इज गिविंग मी मंथली रिटर्न्स. उसमें आपका इंटरेस्ट जो होगा या रिटर्न कूपन बोलते हैं बॉन्ड्स पे, इट इज अबाउट 10 to 13%. अगर Okay. आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल रहे हो तो. अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट विल बी अबाउट 7 to 9%. ये एनुअली है रिटर्न बेसिकली. एनुअली रिटर्न्स, यस. ये लेकिन रिटर्न आपको मिलेगा क्वार्टरली और सेमी एनुअली बेस्ड ऑन व्हाट यू आर चूजिंग. राइट. मतलब वो काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको. आपको हम्म. मंथली वाले भी ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन उसमें रिटर्न्स और कम हो जाता है क्योंकि वो रिटर्न आपको मिल रहा है तो उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है. हाँ. करेक्ट. बट एट द सेम टाइम अगर आप एनुअली चूज करोगे तो उस पर आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट 1 साल होकर आपको मिल रहा है. तो यूजुअली उसमें रिटर्न्स हाई होते हैं. ये थोड़ा टेक्निकल हो गया क्या? बट ठीक है. ठीक है. एनीवे, Yeah. मतलब यू हैव ऑप्शंस ऑफ क्वार्टरली, मंथली, एनुअली. आपको जो भी रिटर्न्स चाहिए आप वैसा बॉन्ड चूज कर सकते हो. गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यूजुअली कम इंटरेस्ट मिलता है. Yeah. और आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या एनबीएफसी बॉन्ड्स होते हैं, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है. लेकिन दिस कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेगुलर रिटर्न्स. आपका यूजुअली म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स आपको बेचने पर ही इनकम मिलता है. राइट. ये वाला आप बिना बेचे पैसे कमा सकते हो. बट देन द अमाउंट आल्सो मैटर्स, नो? डेफिनेटली. सी, रिटर्न्स आर नॉट वेरी हाई. या. रिटर्न्स कूपन जो बोलते हैं वो ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल 13% ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. म्यूचुअल फंड्स भी कोई 13% पे मिलते हैं रिटर्न्स आजकल. राइट, राइट, राइट. फॉर मी बॉन्ड्स आर गुड अगर आपको रिटायरमेंट फंड बनाना है. सपोज आप 10 साल के लिए किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, तो आप 10 साल के लिए आपको वो एवरी मंथ पैसे मिलते रहेंगे. फॉर दैट ऑल्सो इट्स वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट. Interesting. Okay, let's talk about a very interesting mindset of people, which is like they get emotional about money. As in, like generally, जो मतलब जैसे काफी लोग रिटर्न्स के पीछे जाते हैं, but then they're like 30% रिटर्न, 40% रिटर्न और 100% रिटर्न भी अगर किसी ने अचीव कर लिया, but then their mindset is on the return. They don't think about कि वो कितने पे रिटर्न आ रहा है. Like 1 lakh पे 40% is just 40,000. 40,000, yeah. Okay. So just to ask you, you don't get emotional about money like when you receive So, it or when you lose it? Like I haven't seen a lot of money growing up, so I used to get emotional about it earlier, like when I started my finance journey. But since what? Since you became rich. No, not really. Not about that. But 7-8 years I have. So you have to develop that mindset within you. Like you have to actually work on yourself, your traumas, childhood traumas, Yeah. and understand that कि हाँ ठीक है, मतलब if you have that mindset कि आप पैसा वापस बना लोगे और आ ही जाएगा, आने ही वाला है, कोई कमी नहीं होने वाली कहीं से भी, तो वो नहीं होता है. बट अब वो ऐसा नहीं है कि even if I lose money on anything, You won't cry for it. yeah, like I don't feel कि कुछ हुआ like that. Like I've not that I've lost money in any of my instruments because I do it very carefully.
बट जैसे स्टॉक्स में हुआ है कई बार Yeah. कम, मतलब Best of us have read in our हाँ, तो वो portfolio. स्टॉक्स में हुआ है, इंट्राडे पे भी हुआ ही है, मैंने की मतलब अपने से खुद से ट्राई किया हुआ है। एंड सिंस आई डू माई ओन बिजनेस, सो मेरे को कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो मैंने तो मतलब एक बार तो इतने उसमें आके आई जस्ट इन्वेस्टेड 50-60,000 वन गो एंड वेंट जीरो इन। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी क्या कर सकते हाँ, हैं। इसे बोलते हैं reckless investing. या so that's how I learned it. And then I realized कि अगर आप एक कॉर्पस बना लो पहले, what I feel, पहले आप एक कॉर्पस बना लो, फिर आप ये सब कर लो। Very very true. तो मैंने शुरू किया काम करना when I was about 22 years old. और मैंने 5 साल तक में बहुत कुछ, now you guys will start back calculating my age, but नहीं it's नहीं, okay. it's fine, yeah. So 5 साल में I have only saved and invested a lot. So Yeah. मेरे पास वो कॉर्पस अब रेडी है, तो even if I have Paytm in my portfolio, so even when I see that amount, मुझे बुरा लगता है कि हाँ मैंने क्यों खरीदा ये, but then again I know कि I have a lot more Yeah. in my portfolio which is doing very very well. Yeah. Though I don't know what to do about Paytm right now, even I am very clueless, but ठीक है, समय बदलेगा शायद. या बिकॉज मेरे हिसाब से जो इशू अभी के जनरेशन ऑफ मेन में और आगे वाली जनरेशन ऑफ मेन का एक तो ये है कि बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, लाइक दे हैव दैट माइंडसेट ना, उनका सोशल स्ट्रक्चर ही वैसा है कि दे हैव टू डू इट। तो उनके ऊपर एक तो वो टेंशन होती है कि हाँ ये तो करना ही है हमें, ऊपर से देन दे आर मोर डेस्परेट अबाउट मनी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन if my female friends lose money, they're like ठीक है, like I've seen a lot of them. But then if a male friend loses money, he'll go mad because वो वायरिंग थोड़ी वैसी होती है कि मुझे लगता है हमेशा से, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन मेल्स पे ज्यादा रहा है, Yeah, क्योंकि yeah. फीमेल्स वर एट दैट टाइम हाउसवाइफ्स हाँ, मोस्ट ऑफ द right. टाइम्स, राइट तो वो समहाउ उनके जेनेटिक्स में आ गया मेल्स को कि अगर पैसे लूज हुए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वापस लाना, या आई एम द हेड ऑफ द फैमिली टाइप ऑफ फीलिंग. एक आइडियल केस लेते हैं या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सैलरी लेट्स से टेक अ रेंज ऑफ 30,000 to 80,000, ठीक है, एवरेज सैलरी ले लेते हैं। इस इंसान को लेट्स से 50 लाख का कॉर्पस बनाना है। सो इस आइडियल सिनेरियो, लेट्स से ये एक सिनेरियो है हमारे पास, तो व्हाट इज योर गाइडलाइन कि क्या करेगा वो बंदा? एक तो फाइनेंस बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है. Of मैं उसको course. पहले पूछूंगी कि भाई तेरी उम्र कितनी है, तेरे बच्चे कितने हैं, बीवियां कितनी है, तो उस हिसाब से उसका Right. खर्चा होता है. राइट अगर बहुत सारी बीवियां हैं तो मैं बोलूँगी तेरे लिए तेरी सैलरी बढ़ा पहले, तो फिर Yeah. तू 50 लाख के बारे में सोच. बट ऑनेस्टली इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक. अगर आपको 50 लाख का कॉर्पस बनाना है, बेस्ट थिंग टू डू इज गो ऑन अ SIP कैलकुलेटर, वेरी रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन. उसमें आप डाल के देखो कौन से अमाउंट पे, सपोज आप 50,000 कमा रहे हो, 30,000 सेव कर पा रहे हो, 30,000 10 ईयर्स के लिए सेव कर रहे हो, तो कितना कॉर्पस बन रहा है. बस वो कैलकुलेटर में 12% एवरेज रिटर्न डाल के देख लो. मोस्टली आपका कॉर्पस उससे ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि 12% से ज्यादा ही म्यूचुअल फंड्स देते हैं. दैट इज इफ यू आर इन्वेस्टिंग द एंटायर 30,000 इन म्यूचुअल फंड. लेकिन सपोज आप स्टॉक मार्केट में भी डाल रहे हो, तब तो आपको और रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा है. तो माई पर्सनल पोर्टफोलियो इज डिवाइडेड एज 50% इंटू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. बाकी 50% इज इंटू लिक्विड फंड्स लाइक बॉन्ड्स, FDs, SGBs. तो मैंने ऐसे डिवाइड किया ताकि मैं रिस्क भी ले रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे पास पैसे रेडिली अवेलेबल भी है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो. तो अगर आपको भी ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है तो एक तो आपका रिस्क पहले डिफाइन कर लो. जैसे मैंने बोला कि आपका एज कितना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, बूढ़े माँ बाप है अगर आपके, आप पे डिपेंडेंट है, आपके पास उनका टर्म इंश्योरेंस है या फिर आपका टर्म इंश्योरेंस है या नहीं. ये सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. सो मैं मेरे गाइडेंस सेशन में यूजुअली विच आई डू, आई टेक पोर्टफोलियो गाइडेंस सेशन फॉर माई whoever comes to me. Right. तो उसमें मैं उनको पहले एक फॉर्म फिल करवाती हूँ. उसमें ये सारे क्वेश्चंस लिस्ट होते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, आप कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, आपके ऊपर लाइबिलिटीज है या नहीं, यानी आपके पास कोई लोन है, क्रेडिट कार्ड बिल्स है. ये सारी चीज़ें देख लो पहले, फिर जाके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो. राइट. बिकॉज देन अगर आपके पास लोन है 50 लाख का और आप महीने में 50,000 इन्वेस्ट किए जा रहे हो, देन आई वुड से how will you repay your loan? First repay your loans, then start investing. That is my thought process. Right.
And I think people miss out on the very important part that you have to make more money to make more money. Definitely. See, your money will start working for yourself if you have invested in the right kind of instrument. Hmm. इसे बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट. आपका पैसा ही खुद कमा रहा है, खुद ही को Yeah. दे रहा है वो. Yeah. तो एंड दैट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपको 3 साल तक तो कुछ खास फर्क नहीं दिखने वाला है आपके Right. इन्वेस्टमेंट में. Hmm. 5th ईयर में आप थोड़ा देखोगे कि हाँ 30% रिटर्न्स आने लगे हैं. 10 साल बाद देखोगे तो 60% रिटर्न्स आने लगे. देन यू विल नो दैट ओके दिस एक्चुअली वर्क्स. Hmm. हर 2 दिन में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हो, इट डजंट really work like that. Not a magic wand. So I have this like I've thought over it अभी कुछ last 2-3 months में I was thinking because मेरे साथ भी ये हुआ था. So when I started learning about personal finance through YouTube and all जो other sources हैं, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ये सुना था कि यार आप वो जो एक फेमस हुआ है कि 15,000 15 साल 15% रिटर्न और आप 1 करोड़ रुपए बना लोगे. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना था एंड क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था ग्रोइंग अप कि 1 करोड़ रुपए भी होते हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए होंगे या फिर आप भी बना सकते हो. तो पहली बार तो मैं बड़ा खुश हुआ था. मैं बोला यार 15,000 कौन बनेगा करोड़पति? मैं बनूंगा. तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही सही स्कीम है, मतलब क्या क्या बढ़िया है. बट फिर जब आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, देन आई रियलाइज कि भाई 15 साल तो बहुत होते हैं. मतलब 15 साल 15,000 पर मंथ या इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट. या मतलब उतना लोग नहीं कर पाते. और 15 साल के लिए भी तो रुकना है ना, मतलब Exactly. अगर वाली चीज. तो व्हाट आई हैव सीन, अब मेरा तो वो माइंड सेट क्लियर हो गया बिकॉज आई थॉट ओवर इट कि भाई मैं किस चीज में फंसने वाला हूँ. व्हाट आई वांट यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इज कि ठीक है SIP की ऑफ कोर्स यू नीड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी. बट मेरे हिसाब से अगर आप ये सोच रहे हो कि कम पैसों में भी मैं अमीर बन ही रहा हूँ तो फिर क्या फर्क पड़ता है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सो फर्स्ट थिंग इज दैट 15 इयर्स के बाद 1 करोड़ का वैल्यू 50 लाख हो गया होगा. गिविंग एन अप्रोक्सीमेट नंबर. तो और उस टाइम का लाइफस्टाइल आपका 2 करोड़ का हो गया होगा. बिकॉज लाइफस्टाइल चेंजेस विद टाइम. जो हम पहले कपड़े पहनते थे अब हम वो नहीं पहनते हैं. जो हम पहले खाना खाते थे अब हम सब वीगन हो रहे हैं. तो वो उसके साथ कॉस्ट भी बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डेप्रिशिएटिंग. तो योर 1 करोड़ will be 50 lakhs, your lifestyle will be of 2 crores. So how do you meet this gap, right? तो आपको पहले तो डिफाइन करना है आपका चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है. आप आई नो मुझे बहुत ही वॉलेटाइल टॉपिक है ये. आप जाके अभी जो सोचोगे वो नहीं होने वाला है फ्यूचर में. लेकिन आप ये सोच सकते हो कि आपको रिटायरमेंट कैसा चाहिए, आपको घर में रहना है, रेंट पे रहना है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा फिगर आउट कर लो. एंड मे बी प्लान फॉर अ लार्जर कॉर्पस. 1 करोड़ आज के लिए सफिशिएंट है, बट 15 साल बाद नहीं होगा. तो आप 2 करोड़ के लिए प्लान करो, तब जाके शायद आपका लाइफस्टाइल मीट हो पाएगा. 2 करोड़ का वैल्यू उस टाइम पे 1 करोड़ का हो गया होगा. सो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि value of money is depreciating and your lifestyle is appreciating. And that's inversely proportionate always. Yeah, because SIP के सपने तो सब लोग देख रहे हैं कि हाँ ठीक है आप 5,000 रुपए डाल देते हैं, बट वो फिर वाली बात है ना कि पैसा आप इंजॉय कब करोगे. When you will you अगर आप 60 साल के हो गए तो फिर आप क्या करोगे. मतलब 15,000 सपोज आप 30,000 कमा रहे हो, 15,000 आप डाल ही नहीं सकोगे SIP में. तो ये जो 15,000 पर मंथ का कॉन्सेप्ट है ये उनके लिए जो 1 लाख कमा रहे हैं. अब 1 लाख सब नहीं कमा रहे हैं, पर ये वीडियो देख के सब 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो बचे हुए 15,000 में आप कैसे लाइफ का गुजारा करने वाले हो. करेक्ट. right. या Again, the first step is to earn more money. Earn more money and earn from multiple sources. Yeah. Just don't depend on your salary or your business income. मैं तो बोलूँगी 5 sources of income होते हैं, 5 में से कुछ करके इनकम कमाओ. डिविडेंड होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, कैपिटल गेन्स होता है. जैसे मैंने CA किया तो हम लोग को ऐसे टॉपिक्स डिवाइड हुए थे 5 टाइप्स में. ये जो मतलब ये तो हो गया उनके लिए जिनको ये समझ है, या फिर जो अर्न कर रहे हैं कंपनीज में, या मतलब कहीं से पैसा आ रहा है. व्हाट अबाउट पीपल हु आर what 18 20s, because वो सबसे they are earning much more than us, I'm telling you. People who are 18 and 20 they have a startup already, they are multimillionaire already, and they somehow are very tech savvy right now. So उनके लिए ऐसा है कि साइड गिग इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेन एडुकेशन. सपोज वो एडुकेशन कर रहे होंगे फाइनेंस में, बट एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में खोल के रखा है ऑलरेडी. तो आई रियली लाइक द जेन ज़ी फॉर दिस बिकॉज दे आर हसलर्स. दे हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी.
एंड आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज आपका जॉब सपोज आज है कल नहीं है, Yeah. लेकिन आपकी इनकम रुकनी नहीं चाहिए Hmm. इररिस्पेक्टिव. Mm-hmm. तो इट मेक सेंस टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. Because I have seen people crying about it in the comment section a lot. जैसे मेरे comment section में भी है, बहुतों के में मैंने पढ़ा है कि मतलब आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. वो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग या बिकॉज ऑफ वो होता है दैट दे आर लाइक कि मी वाचिंग दिस वीडियो विद 1 रुपी इन माय पॉकेट. तो दे हैव दिस माइंडसेट कि यार मेरे पास तो पैसे ही कम पैसे है, नहीं. राइट? और ये जो लोग हैं जो 16 17 18 में चाहते हैं पैसा कमाना, बट ऑप्शंस उनके पास हैं, मतलब ऑप्शंस हैं उनके पास, वो कर सकते हैं. बट जैसे आपने ऑप्शन बोला, सबके पास है, मैं बोल हाँ. रही हूँ. इवन अ 40 years old man ऑफ कोर्स, कैन अर्न अनदर सोर्स ऑफ इनकम बाय सिटिंग एट होम. या अगर आपको ब्लॉगिंग आता है, आपको वीडियो एडिटिंग आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, इरिस्पेक्टिव आप जॉब कहीं और कर रहे हो, बिजनेस कुछ और कर रहे हो, आप इसमें साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन अर्न really really well. Why do you think a lot of people are leaving their jobs and making this a full-time thing? Yeah. Because they are earning much more than what they were back then. राइट. For me at least. No, that's good to know. Yeah. At least like you should be happy what you're doing. Definitely. ग्रेट. तो इंडिया में जैसे हमने अभी बात करी SIP वाले उसकी माइंडसेट की, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं सिर्फ, तो इंडिया में अगर मैं बात करूं आज से 10-15 साल, चलो 15 साल ही ले लेते हैं, 15 साल बाद व्हाट अमाउंट डू यू थिंक इज दैट विल मेक मी वेल्दी, कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, नाउ आई एम वेल्दी, एंड व्हाई? Wealthy, maybe a 10 crore is what will make you wealthy. But if you are thinking कि नहीं, लाइफ जैसी अभी चल रही है वैसी चलनी चाहिए, तो even a 2 crore will be enough. Even a 2 crore will be enough because आपके वो 2 करोड़ पे आपको रिटर्न्स भी मिल रहे होंगे. राइट. That 2 crore is invested is what I'm assuming. It's not in your savings account or FD for that matter. तो आपके 2 करोड़ पे 10% भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो भी आप जी सकते हो, उससे लाइफ का गुजारा कर सकते हो. बट अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो अच्छी लाइफ जीनी है, 10-15 करोड़ के ऊपर ही सोचो फिर आप. इंटरेस्टिंग. Yeah. What do you think is different according to you? What is the difference between being rich and being wealthy? Being rich is a very momentary, temporary thing. Okay. I remember this कौन बनेगा करोड़पति में the first करोड़पति yeah, is broke right now. He was rich, but Yeah. he's not wealthy. Hmm. At the same time, Warren Buffett, Yeah. he became, he earned 90% of his income after 65 years of Yeah. age. So that is how he created his wealth over time. Hmm. And he is wealthy because it will sustain. Even for that matter, धीरूभाई अंबानी ने कंपनी शुरू की, Yeah. मुकेश अंबानी ने उसको मल्टीप्लाई किया, तो ही इज अ वेल्दी पर्सन बिकॉज इतने सारे एक तो कंपनीज खोल के रखे हैं, डाइवर्सिफाई करके Yeah. रखा है. No chance that he will go broke ever in this generation. I don't know about the next one, Yeah. but he's not going to go broke anytime sooner. So wealthy ka definition is from a long term perspective, rich ka definition is very temporary. Hmm. Yeah. Interesting. Because what I have heard from people is they think unidirectional. कि wealthy मतलब पैसा, मतलब सिर्फ पैसा. They don't think about the other things. जैसे it's sad to the news was sad that Rakesh Jhunjhunwala passed away. But His lifestyle. yeah, he was had a lot of the- money, but then health was pretty. But I think he was only passionate about that thing. Yeah. It was not that he was not enjoying his life. He might Yeah. be enjoying just making money. Yeah. It can be a lifestyle for somebody who is that Maybe. rich maybe. For me, honestly, अगर मैं कमाती हूँ तो मुझे जो भी बचा कुचा रहता है which I don't invest, I put it in travel fund. Yeah. जो मैं ट्रैवल करती रहती हूँ and I enjoying doing that. Yeah. अगर मैं वो नहीं करूँ तो मेरे लिए ये कमाने का मतलब नहीं है. Oh yeah, let's come to travel funds. So मैंने भी because I also travel a lot, but मैंने कभी आज तक उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा कि इसका फंड भी बना सकते हैं. मतलब it's always been like I've been lucky कि जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है तो always it's there कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान होता है, कुछ ना कुछ ऑलरेडी सब हो जाता है. But then let's say someone wants to go to a destination. ठीक है, you choose a destination and you tell us how to do it. Suppose मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है. It is Okay. an expensive trip. 3-4 lakhs depending on how many cities you are covering, how many states you are covering, places ठीक you are है. covering. ठीक है, तो 4 लाख सपोज पर पर्सन कॉस्ट है. Okay. अगर मुझे आज ही जाना होता तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, मुझे कहीं ना कहीं से कुछ लिक्विडेट करना पड़ता, कुछ बेचना पड़ता, स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचने पड़ते हैं. बट मुझे वो नहीं करना है. मुझे स्पेशली इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मैं वही फंड लास्ट में यूज कर पाऊँ फॉर दिस ट्रैवल. सपोज 3 साल बाद मुझे यूरोप जाना है, आई वांट 4 lakhs. आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग 9,000 10,000 per month in a mutual fund which is going to give me after 3 years
और 15% रिटर्न। ओके तो आराम से मेरे पास एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई विल हैव तो 4.5 लाख आराम से हो जाएगा, एंड देन 3 years बाद आई विल नॉट हैव टू लिक्विडेट एनी अदर फंड। मैं अपना ट्रैवल फंड ही यूज कर रही हूँ, उससे मैं घूम रही हूँ। तो दैट मेक्स मोर सेंस टू मी, बिकॉज वो एक गोल बेस्ड प्लानिंग हो गई कि मेरा ये गोल था, मैंने अचीव कर लिया ओके और मैंने लिक्विडेट कर दिया, क्लोज कर दिया वो फंड को। तो इसको सेपरेटली एक म्यूचुअल फंड ऐप में डाल के आप कर यस, सकते हो। तो काफ़ी जैसे ग्रो है या अपस्टॉक्स है, उनका खुद का एक कैलकुलेटर होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। यू डिफाइन योर गोल ट्रैवल, उसके बाद आप डालो कि कितना पैसा आपको मंथली डालना है, कितना आपको करना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। Right. सपोज आपको 2 लाख चाहिए, आपको वियतनाम जाना है, तो आप उस 2 लाख में पर मंथ आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो कैलकुलेटर खुद से बताएगा। मतलब मेरे को लगता था ट्रैवल फंड ऐसे मैं बनाऊंगा तो कुछ अलग दिमाग लगा के नहीं उसमें नहीं, कि अलग नहीं, एक है कि आपको पता होना चाहिए कितना अमाउंट डालना है, या दैट कैन बी डन थ्रू अ कैलकुलेटर। बट जैसे मेरे लिए पर्सनली 3 साल लंबा हो जाता है, मतलब मेरे को लगता है 3 साल बहुत दूर है। मेरे को ऐसा है कि अगर मुझे अगर यूरोप जाना है आपको या मुझे तो नॉर्वे जाना है, वो सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है कि इंस्टेंटली आप 2-3 महीने के प्लान नहीं कर सकते, यू नीड अ लॉन्गर पीरियड, या तो हो जाता है। इंटरेस्टिंग। हाँ बट इट्स अ नाइस वे ऑफ ट्रैवलिंग कि हाँ ठीक है आप या पहले से ही बना के, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं होगा अलग से कि करेक्ट। अब मेरे को इसका स्ट्रेस आ रहा है उसका स्ट्रेस आ रहा है, आपके पास वो है। और एक और चीज़ है, सपोज आप छोटे छोटे ट्रैवल्स करते हो, जैसे विद इन इंडिया ऑल्सो, अगर आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हो, तो ये फंड का आप कॉर्पस अमाउंट मत यूज करो। यानी जैसे मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया, उस पर मुझे 1 लाख रिटर्न आना शुरू हो गया है, हाँ तो बस वो रिटर्न्स को यूज करो फॉर योर डोमेस्टिक ट्रैवल्स। जैसे मैंने 20,000 विड्रॉ किया, मोस्ट ऑफ माई ट्रैवल आर स्पॉन्सर्ड, तो मुझे बस फ्लाइट का खर्चा होता है, तो वो फ्लाइट में मैंने 20,000 विड्रॉ किया, बाकी का 2 लाख उधर का उधर ही है, वो कंपाउंड हो रहा है वो फंड जो है, मैं बस रिटर्न्स विड्रॉ कर रही हूँ, जो वापस मैं इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ, वापस नहीं भी कर सकती हूँ, डजेंट मैटर, वो कॉर्पस अनटच्ड है। तो दैट इज अनदर वे विच इज वेरी सस्टेनेबल, आपका फंड भी क्रिएटेड है। राइट Yeah. अच्छा इसमें जो जैसे मान लो हम जैसे 10 years का एक वो ले रहे हैं, अगर हमें कुछ इन्वेस्ट करना है, तो अगर मेरे 2-3 अलग अलग गोल्स हैं, तो मतलब मैं एक ही SIP करूं या फिर मैं उतनी SIPs करूं? जैसे मान लो 3 गोल्स हैं, तो 3 गोल के लिए 3 अलग, लेट्स से एक मेरे को गाड़ी के लिए लेना है, एक मेरे को किसी और चीज के लिए है, घर के लिए है, तो मेरे को उसको सेपरेट करना चाहिए। आइडियली सेपरेट करना चाहिए। अगर गोल अलग है तो अलग SIP रखो, क्योंकि एक तो लॉक इन पीरियड हो सकता है कि 3 साल का हो उस पर्टिकुलर फंड पे, हाँ। और आपका गोल 1 साल का ही है, एक गोल 1 साल का है, एक गोल 4 साल का है, तो आप वो 1 साल वाले तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 3 साल तो लॉक इन पीरियड ही है। राइट तो आइडियली अलग अलग करना चाहिए, बट अगेन म्यूचुअल फंड्स 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप सेम ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज फंड ओवरलैपिंग। ओके सो फंड ओवरलैपिंग है, सपोज आपके पास 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, तीनों म्यूचुअल फंड्स ने सेम 3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। अगर आप ये चेक ही नहीं कर रहे हो कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है इन तीनों ने, तो हो सकता है कि ये सेम ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इवन इफ आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, दैट इज नॉट हैपनिंग। ओके सो फॉर एनीवन लाइक जनरल, व्हाट शुड दे नॉट डू कि उनका पैसा ही ना डूबे? डोंट इन्वेस्ट इनटू समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक एज बेसिक एज दैट। अगर आप फिर भी ट्राई कर रहे हो उसे समझने का, तो इन द प्रोसेस यू इन्वेस्ट, बट नॉट अ लॉट ऑफ अमाउंट। अगर आपने 1 लाख डाल दिया और स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता है, या फिर आपको डीमैट कैसे ओपन करना है उतना भी नहीं पता है, तो डोंट इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स। पहले आप समझो, फिर जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करो। म्यूचुअल फंड्स में भी आप समझो कि म्यूचुअल फंड्स के जो टर्म्स होते हैं, जैसे IRR होता है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ होता है, ये सब क्या होता है, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको समझ आएगा कि वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर आप इन्वेस्ट बेटर कर पाओगे। या सो दैट्स माय वन पीस ऑफ एडवाइस। इंटरेस्टिंग। ठीक है, thank you so much Thank you for being for here. It having was me. lovely talking to you. Learned Same a here. lot in the whole process. Great. Thank you so much again.